Good evening, everyone, and welcome to today's session. I'm CA Snehal Rao. I welcome you to the VCM and approach of office management in COVID and post-COVID era, organized by Pune branch of WIRC of ICAI. I welcome our speaker for the today's session, CA Radhesham Biyani, CA Samir Ladha, Chairman and Treasurer of Pune branch of ICAI. I now request our chairman, C.A. Samir Ladha, to deliver the welcome address, please. Well, thank you, Snehal. Young and dynamic speaker, today's speaker, C.A. Radhesham Biyani from Latur, MOC, C. Snehal Rao, and all the participants. Good evening. Welcome in this session of approach to office management in COVID and post-COVID era. Office management is always necessary subject, not only today. It was very necessary subject in past, today, and also very necessary subject in future also, because office management is very essential to run your office effectively, to give your services properly to your clients with your scheduled time, and also to learn, teach whatever best possible to your articles. So office management, in my opinion, is the most essential subject for running your office smoothly and to grow also. I know personally Radhesham, he has invented a lot of different softwares, and he has mastery in these subjects. I thanks Radhesham for giving your valuable time. I know you are very busy to giving lectures to various different branches. I thank you very much for giving your time for Pune branch. Welcome. Over to you, Snehal, for further process. Thank you, Sir Samir Ladha. Now I would like to introduce our eminent speaker, C. Radhesham Biyani. Mr. Biyani is a founder and CEO of Empower Group. He is a visionary who believes in the optimum use of technology to solve the professional and personal challenges that one faces in its day-to-day work management. With smart, efficient, and highly productive tools like CASER, COMSE, Mr. Biyani has changed the way the businesses function and operate. Mr. Biyani has 20 plus years of experience in financial consulting, government initiatives, incentives, subsidies, loan syndication, and innovation in technology through its parent company, Empower Financial Consultants Private Limited. Watching the need to have a smoother work process management and for small and mid-sized CA firms and MSMEs, Mr. Biyani founded Empower Group with the goal of making work management in profession a smooth process-oriented and highly efficient process. Number of CA firms have been benefited since then from the innovations and technologies envisioned by him. Mr. Biyani is associated with numerous social causes like community development, food and shelter for needy, and have proactively taken measures for education in rural areas of Maharashtra. People know him for his meticulous research abilities, his ability to put ideas into reality, and for his love for technology. With keen attention to detailing and over readiness to action attitude, he has been successfully converting his ideas and innovating through technology. He is going to deliver the lecture on approach to office management in COVID and post-COVID era today. I request the participants to ask the questions only in question and answers tab, please. Please do not put the questions in the chat box because then it becomes a little difficult for us to manage. Those questions asked in chat box will not be considered. Now, without wasting much time, I request Mr. Biyani to start with the session, please. Over to you, sir. Okay. Am I audible? Yes, sir. Thank you, Snehal. I'm very much thankful for Samir ji and managing committee of the Pune branch of WIRC of ICAI
for inviting me to deliver lecture on this subject. Due to COVID, all the things has been changed. It is a personal life or professional life. So we have to also change our working style and all the things of previously we can manage our task from office only. Now we have to manage our office work from office also and from home also. So change is the life. So we must change. I will just share. So we will start our first technical session on office management. Office management. If you have, I will ask some questions. You can reply in chat box so that I will. And if you have any specific question, put it in question and answers box, which will be replied at the end of the session. So, what is office management? Before that, I will ask one question: why it is needed? ऑफिस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? रिप्लाई थोड़ा सा अगर चैट में 2-4 जन देते हैं तो अच्छा हो. टू मैनेज डे टू डे वर्क. ओके. Smooth functioning of work and compliances in time. Okay. So, save time, proper monitoring to manage office affairs and personal. So basically all the answers are good. So we basically divide what is the benefits of office management in 4 parts. First one is it will save time and cost. Second is increase our productivity. ये अगर 2 मिलते हैं तो अल्टीमेट अपना ग्रोथ भी हो जाता है. और ये 3 अगर मिल जाते हैं तो अपने लाइफ में पीस भी हो जाता है और बैलेंस ऑफ लाइफ भी मिल जाएगी अपने को. So these are the 4 benefits of office management. I will ask one more question. What is office management? Please reply. What is office management? Reply in chat box. Managing operations, documents and people, managing office affairs and personals in our absence. Okay. So basically there are 6 pillars of our office management. Chartered accountants office management, there are 6 pillars. 4T and FC. पुणे में जो रहते हैं उनको FC रोड क्या है वो बताने का जरूरत नहीं, तो ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है. 4T and FC. तो फर्स्ट T is time management, second T is team management, third T is task management, fourth T is technology management. This is 4T. F file management and C client management. These are the 6 pillars of office management. We will take it one by one in this detail in next presentation. So first one is time management. What is the time management? So in one line, एक ही लाइन में अगर बताता हूं तो अनप्रोडक्टिव टाइम जो है वो कम करके प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाना, इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. अनप्रोडक्टिव काम जो है अपना
वो अपने को कम करना है। अनप्रोडक्टिव टाइम अपना जो वेस्ट होता है वो कम करना है, और प्रोडक्टिव टाइम जो है वो अपने को बढ़ाना है। तो अभी थोड़े से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अनप्रोडक्टिव टाइम जो है वो क्या क्या है। काम भूल गए। ऐसा कितने जनों के साथ में हुआ है कि किसी ने एक भी काम भूला नहीं है? ऐसा कोई है यहाँ पे कि एक भी काम उसने भूला नहीं है? अगर है तो वो चैट बॉक्स में यस करके लिखो कि मैंने काम कभी कोई भूला नहीं है। यस वी मे स्किप। ओके, नहीं, जिसने नहीं भूला है वो खाली यस लिखे कि मैंने काम कभी भूला नहीं है। तो ऐसा एक भी जन नहीं है कि जो इसने कुछ भी काम भूला नहीं है। तो अपना एक आदत बनता है कि काम अपन भूल जाते हैं। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो भूल गए तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ काम ऐसे है, अगर जो भूल गए तो उसका बहुत बड़ा अपने को नुकसान हो सकता है। या जैसे कि आपके माँ ने बताया कि आपकी मौसी आ रही है, उसको रेलवे स्टेशन कल सुबह 11 बजे लेने को जाना है। आप भूल गए, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर आपकी सासू माँ आ रही है और आपके बीवी ने बताया कि कल मेरी माँ आ रही है, आपको 11 बजे जाके उसको उनको कलेक्ट करना है, और ये अगर काम भूल गए तो आपको पता है कि क्या क्या दिक्कत हो जाएगी। ये तो पर्सनल एग्जाम्पल हो गया। ऐसे प्रोफेशनल एग्जांपल्स भी है कि कुछ कुछ काम समझो एक आधे क्लाइंट ने अपने को बुलाया है, अच्छा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, मीटिंग के लिए, और अपन मीटिंग का डेट और टाइम ही भूल गए, तो वो अपने को ऐसी चीजें अपने को नहीं करना है। तो काम भूल जाने की वजह से अपना जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो बढ़ते जाता है। दूसरी चीज है कि अनप्लान्ड टास्क मैनेजमेंट विदाउट नोइंग प्रायोरिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने अपन काम तो कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे यार, इससे भी हाई प्रायोरिटी वाला काम जो है वो दूसरा था, वो पहले खत्म करना था, बाद में ये खत्म करने का है। तो ऐसे काम करने की वजह से हाई प्रायोरिटी वाले को सर्विस भी मिलती नहीं है, और ये अनप्रोडक्टिव टाइम बढ़ाता है। तीसरा है कि क्लाइंट जो है वो अपने को हर साल 3 साल के ITR GST रिटर्न बहुत कुछ बार बार डिमांड करता है। क्यों डिमांड करता है? क्योंकि अपने पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अपने ऑफिस में कि क्लाइंट को अपन एक बार अगर एक्सेस देते हैं तो वो उधर से उसका डाउनलोड करते लेते रहे। वो हर बार आपको फोन करेगा, सर मुझे मेल चाहिए, ये चाहिए, ऐसे, क्योंकि अपने पास में सिस्टम नहीं है। तो हर बार उसका फोन आएगा, अपन मेल करते जाएंगे, तो इससे अपना अनप्रोडक्टिव टाइम बढ़ गया। चौथी चीज है स्लो इंटरनेट। बहुत बार ऐसा होता है कि स्लो इंटरनेट होने की वजह से अपना टाइम वेस्ट होता है। जैसे 10 MB का फाइल अपलोड करने के लिए फास्ट स्पीड पे 1 मिनट लगेगा, तो वही स्लो स्पीड पे आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये होता है कि स्टाफ लीव पे है, क्लाइंट आपके पास में आया है, वो पूछ रहा है कि मेरे इसके क्या क्या क्वेरीज है वो मुझे बताओ। वो आपके पास में अवेलेबल नहीं है एक ही जगह पे, तो उसकी वजह से आपका यानी क्लाइंट का भी सर्विस नहीं हुआ, और ये अनप्रोडक्टिव टाइम अपना बढ़ा दिया, क्योंकि वो बाद में वापस आएगा, उसको वापस क्वेरीज देंगे। काम करते वक्त ध्यान में आ गया DSC एक्सपायर्ड हो गई है, और फिर वो इनकम टैक्स का रिटर्न या GST का रिटर्न अपलोड करना रह गया। या बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपने क्लाइंट्स जो है वो टेक सेवी नहीं रहते हैं, अपन उनको बोलते हैं कि ये DSC बनाने का है, आप एक ये टेक्स्ट है और उतना टेक्स्ट पढ़ के आप वीडियो बना के भेजो। उतना भी उनसे होता नहीं है। वो अपने को बार बार फोन करके पूछते हैं, सर ये कैसा करने का, क्या करने का है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्टाफ ने आपको क्लाइंट आपने काम किया है कुछ टास्क का क्लाइंट का, और स्टाफ को बोले आपके क्लाइंट को फॉलो अप करो। क्लाइंट बोला, स्टाफ बोला कि आपका क्लाइंट का नंबर नहीं है, आप इमीडिएट कुछ तो काम था निकल गए, 2 दिन आपने कांटेक्ट ही दिया नहीं स्टाफ को, उसकी वजह से उसका फॉलो अप पेंडिंग हो गया। तो 2 दिन के बाद में उसका काम चालू हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइमली रिमाइंडर नहीं मिले हैं। समझो इनकम टैक्स का कुछ नोटिस है कि जिसका रिप्लाई अपने को 30 अप्रैल तक देना था, लेकिन आपको रिमाइंडर ही नहीं मिला, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने थर्ड पार्टी असेसमेंट कर दिया। तो ये अपना
आगे का काम बढ़ा दिया, यानी आगे का अनप्रोडक्टिव वर्क जो है वो बढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो अपने ऑफिस का अनप्रोडक्टिव टाइम जो है वो बढ़ाती है। इससे क्या होता है, एक तो टसल हो जाती है क्लाइंट और स्टाफ के बीच में, कि स्टाफ बोलता है सर मैंने तो कर दिया, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। क्लाइंट बोलता है मेरे को प्रॉपरली फॉलोअप ही नहीं मिल रहा है। इससे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी कम होता है। तो ऐसी चीजें अपने को अवॉइड करनी चाहिए। अब दूसरा है प्रोडक्टिव टाइम क्या है, अपन काम करते वक्त प्रोडक्टिव टाइम कौन से इसमें ये कर सकते हैं। पहला जो है कि प्लान लेट इवनिंग एंड स्टार्ट वर्क अर्ली मॉर्निंग। अगर आपका प्लानिंग पहले दिन रात में ही बने वाला है, तो दूसरे दिन ऑफिस को आप 9:30-10 बजे जब भी आते हैं, तो इमीडिएटली आप आपका काम चालू कर सकते हैं। समझो, बहुत लोगों को आदत है कि सुबह आते बराबर दिन का प्लान करना, वो ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो पहले दिन ही रात को प्लानिंग करो, तो आपका सुबह का वर्किंग टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट नहीं होगा। तो ये एक प्रोडक्टिव टाइम आपको उतना ही 15-20 मिनट जो भी टाइम लगता है वो आपका प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाएगा। दूसरा है मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अपने को स्मार्ट वर्क करना है, ना कि क्लेरिकल वर्क करना है। अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जीएसटी का 2A रिकंसिलेशन करना है विथ टैली के डेटा से, कि कौन से बिल्स 2A पे अवेलेबल है और कौन से नहीं है। तो कोई बता दे कि ये करने के लिए टैली से आपके पास में एक्सपोर्ट है डेटा परचेस का, और जीएसटी साइट से डाउनलोडेड है 2A। तो ये मैचिंग करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? एक 4-5 जन जरा रिप्लाई दो कि 2A मैचिंग, और एक नॉर्मल आप 1000 एंट्रीज है ऐसा मान के चलो, कितना टाइम लगेगा बताइए? वी लुकअप 1 टूल, ओके सर, वी यूज सॉफ्टवेयर 1 आवर, ओके। अभिषेक जी, विथ सॉफ्टवेयर ऑप्टोटैक्स, ओके। तो किसी ने लिखा है 1 घंटा लगेगा, कोई बोला वी लुकअप यानी 5 से 10 मिनट, क्लियर टैक्स वगैरह। तो सॉफ्टवेयर से कितना टाइम लग रहा है आपको वो 2A करने में, 2A का रिकंसिलेशन? तो एवरेजली कोई भी जो है, जैसे कि किसी ने बोला 1 घंटा लगेगा, किसी ने बोला 10 मिनट लगेगा। कोई कोई यूटिलिटीज ऐसे है कि जो खाली 1 से 1.5 मिनट में आपका कितना भी बड़ा डेटा हो, मिसमैच जो है वो आराम से निकाल के देते हैं। तो अपने को ऐसा स्मार्ट वर्क करने का है, जहां जहां हो 20 मिनट एवरेज सॉफ्टवेयर से भी। कुछ कुछ यूटिलिटी ऐसे है कि सॉफ्टवेयर से 20 मिनट लग रहा है, कुछ कुछ एक्सेल यूटिलिटीज ऐसे है कि 1 से 1.5 मिनट में वो 2A मैचिंग करके देते हैं। तो यानी आपका टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है, आपका 17 से 18 मिनट आपका सेव हो गया है। तो ऐसे अपने को स्मार्ट वर्क करना है। तीसरा है टाइमली लीगल कंप्लायंस रिड्यूसेस फर्दर नोटिस रिप्लाई एंड वर्क। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि आपको नोटिस का रिमाइंडर नहीं आया, उसकी वजह से आप ने रिप्लाई नहीं दिया, थर्ड पार्टी असेसमेंट हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिस आ गई, उसका रिप्लाई अपन ने जैसे जितना हो सके टाइम के पहले देना चाहिए, तो वो आगे के जो अपना टाइम है वेस्ट करने वाला वो बच जाएगा, तो अपना प्रोडक्टिव टाइम उससे बढ़ेगा। चौथा है मैक्सिमम टास्क चेकलिस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने पास में जो भी काम है, टाइप ऑफ वर्क जो भी है, उसका आपके पास में एक चेकलिस्ट होना चाहिए। कि जैसे कोई क्लाइंट आपके पास में आता है और वो बोलता है सर मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट है, वो आपके पास में रेडी होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने 1 साल पहले बनाया था, 2 साल पहले, जब भी चेंज हुआ है उसमें कुछ या आगे काम करते करते कुछ ये है, तो उसको टाइमली अपडेट करो। जैसे कि टैक्स ऑडिट है,
टैक्स ऑडिट का अपन ने चेकलिस्ट बनाया है, लेकिन लॉ चेंजेस हो गए तो उसको प्रॉपरली अपडेट करो और हर एक चेकलिस्ट करो, तो इससे अपने को बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। ये अपने और अपनी टीम का प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाता है। प्रॉपर यूज ऑफ व्हाट्सएप, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी अपने को हर एक को पता है और उसका यूज अपन करते ही है। तो एक व्हाट्सएप में मैं एक सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, तो अपडेट्स आते हैं, मान के चलो कि 2 महीने पहले कुछ तो अपडेट आया था, तब आपको लगा था कि अरे यार ये मेरे को फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी तो लगेगा, लेकिन 2 महीना हो गया है, अभी आपको वो रेफरेंस की जरूरत आ गई है, ग्रुप में आने वाला है चैट, तो आपको कितनी देर में आप उसको रिट्रीव कर सकते हो वो डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो ढूंढना पड़ता है, अरे यार कौन से ग्रुप में आया था, किसने इंडिविजुअल भेजा था, क्या हुआ था, कैसा। तो कितने देर में आप रिट्रीव कर सकते हो। चैट में एक करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट। तो एक सिंपल आप क्या 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा, एक मान के चलो। तो आप क्या करो, एक सिंपल ट्रिक है व्हाट्सएप में, आपके पास में अगर 2 नंबर है तो ठीक है, 2 नंबर का एक ग्रुप बना दो। या अगर आपके 2 नंबर नहीं है तो एक फैमिली मेंबर कोई भी है, उसका नंबर लेके आप एक ग्रुप बना दो, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन, भले ही उसमें फिर आप ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, अलग अलग ग्रुप बना सकते हो कि इनकम टैक्स अपडेट, सेल्स टैक्स, दोनों का ही ग्रुप बनाने का, क्लाइंट को लेने का नहीं है, दोनों का ही ग्रुप बनाने का। अपने ही 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों का ही ग्रुप बनाने का, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन लगता है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए लगेगा, तो वो खाली वो ग्रुप पे फॉरवर्ड करके रख देने का। और एक चीज ध्यान में रखना कि वो ग्रुप पढ़ना, उसके डॉक्यूमेंटेशन या इमेज जो भी है वो एक बार व्यू करके रखना, नहीं तो व्हाट्सएप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रिसेंड बोलता है, अगर आपने वो देखा नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बाकी चैट कुछ देखने का जरूरत नहीं, सबसे पहले आप वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है ग्रुप, वो ग्रुप ही देख लो। लेबल फीचर भी अच्छा है, तो वो सबसे पहले जो है वो आप वो ग्रुप देखो, तो उसमें आपको इमीडिएटली जो है आपको लेबल बहुत सारे क्रिएट करने पड़ेंगे, अलग 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 अलग। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन में हेल्थ रिलेटेड है, कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल ऐसा कर सकते हैं, और ग्रुप है तो किसी को ऐड भी कर सकते हैं। लेबल आपके इसमें, आपका मोबाइल और ये अगर कुछ ये हो गया, व्हाट्सएप देता है चैट रिट्रीवल, तो ऐसा दोनों का ग्रुप बना दिया, यूजफुल इंफॉर्मेशन देखो, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, वो ध्यान में रखने का जरूरत नहीं किसने भेजा था, क्या किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन मीटिंग विद क्लाइंट इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन। जैसे कि कोविड की वजह से जो है एक तो रिस्की भी हो गया है, तो इसकी बजाय ऑनलाइन मीटिंग ही करो, ये अपना प्रोडक्टिव। नहीं तो क्या है, क्लाइंट बोलता है मैं 11 बजे आऊंगा, वो आता है 11:15 11:30 तक, तब तक आपको काम करने का मूड ही नहीं बनता, क्योंकि वो आ रहा है वो आ रहा है, ऐसा हो जाता है। एक तो उसका भी वो समझो पिंपरी चिंचवड़ से आ रहा है, तो उसका भी आधा 1 घंटा हो जाता है, आधा 1 घंटा लगेगा, आपके भी स्टाफ का। तो इससे अच्छा ऑनलाइन एक मीटिंग करो, टाइम शेड्यूल करो, 10 मिनट में मीटिंग खत्म करो, आउटपुट हो जाएगा। नहीं तो स्टाफ 2 मिनट के बाद में आता है, दूसरा स्टाफ 4 मिनट के बाद में आता है, क्लाइंट 10 मिनट के बाद में, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा ऑनलाइन मीटिंग कर लो, काम हो गया, इमीडिएटली काम को लग जाते हैं सब। इन बोरिंग टाइम डू इंटरेस्टिंग वर्क और सर्च न्यू थिंग्स। बहुत बार ऐसा होता है, अपन सुबह 9:30 बजे गए हैं ऑफिस को, शाम को 6 बजे तक अपन ने बहुत काम कर दिया, अब इरिटेट हो गए वो टैक्सेशन, अपडेट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी से। तो अभी आप ऑफिस से जनरली 7 बजे निकलते हैं, तो 1 घंटा क्या करने का है। ऐसे बोरिंग टाइम में जो है आप इंटरेस्टिंग वर्क, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो आप काम करो, कि बाबा मुझे रिव्यू लेने में इंटरेस्ट है, या मुझे नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ढूंढने में इंटरेस्ट है, या मुझे समझो अपील के केसेस का ये पढ़ने में इंटरेस्ट है। ऐसे बोरिंग टाइम में आप इंटरेस्टिंग वर्क करो, तो उस टाइम का आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो बाद में आपको उसके लिए और अलग से टाइम देना जरूरी नहीं है।
ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अपने प्रोडक्टिव टाइम को बहुत बढ़ाती है। He make habit of notepad and small things which takes more time of your team. आपको हर चीज का नोटिंग करने का, छोटा से छोटा काम भी हो उसका नोटिंग करने का आदत लगाना है। अभी ऑफिस में है तो आप डायरी मेंटेन करो या एक पेज पे लिख दो, आप जहाँ टेबल है वहां पे एक डायरी रख दो ओपन, कुछ किसी का भी फोन आ गया नोट डाउन करो, यानी काम है तो उसका क्या काम है। और अगर आप ऑफिस के बाहर है तो मोबाइल एप्लीकेशन है बहुत सारे नोट्स के, वो उसमें नोटिंग करते जाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जब रिव्यू लेंगे तो छोटे छोटे काम जो है वो आपको खाली असाइन करने का काम रहता है, खाली बोलने का काम रहता है, वो काम होते जाता है, लेकिन अपने ही ध्यान में नहीं रहता है तो अपन बोल नहीं पाते हैं। तो आपको एक हैबिट कराना है कि हर चीज जो है छोटी छोटी वो अपने को नोट डाउन करके रखने की है। तो इससे अपना जो है टाइमली वर्क भी कंप्लीशन होगा और ये अपने प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपके प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाती है। इससे क्या होता है, इससे अपना क्लाइंट भी सेटिस्फैक्शन हो मिलता है क्लाइंट को भी, और अपने स्टाफ को भी मोटिवेशन भी मिलता है। सेकेंड टी, टीम मैनेजमेंट। व्हाट इज टीम मैनेजमेंट? आई विल डिस्क्राइब, एक ही लाइन में मैं आपको बताता हूँ। टीम मैनेजमेंट है कि हायर प्रोडक्टिविटी विथ मोटिवेशन। आपकी टीम जो है उसने हायर आउटपुट देना चाहिए, यानी हायर प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, और प्लस साइमल्टेनियसली वो मोटिवेटेड भी होनी चाहिए। तो हायर प्रोडक्टिविटी किससे किससे आती है, एक छोटे छोटे एग्जांपल। फर्स्ट है कि सेट प्रोसेस, फॉलो इट, रिव्यू इट, अपडेट इट, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो है वो होने चाहिए आपके ऑफिस में। हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस होने चाहिए। नहीं तो क्या, इससे दो बेनिफिट्स होता है, आपका काम जो है वो एक स्मूथ तरीके से चलता है, और समझो एम्प्लॉय चेंज होते हैं, एट्रिएट होते हैं या कुछ होते हैं, तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होता है। नहीं तो क्या हो गया, एम्प्लॉय एक जो कर रहा है वो अ, अलग तरीके से काम कर रहा है, बी अलग तरीके से काम कर रहा है, सी अलग तरीके से, एक ही काम तीनों तीन तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सेट प्रोसेस होना चाहिए। तो उसकी वजह से आपका काम जो है टाइमली कंप्लीट भी हो सकता है। कुछ क्वेरी और ये आते हैं तो, और हर एक प्रोसेस सेट होने के बाद में उसको फॉलो करो, टाइमली रिव्यू करो। It seems there is some internet issue with Radhesham sir. Hold on, he will join. We are talking with him. Let's wait for some time. Sir, we are not able to hear you.
We are trying to call him. Please wait. He will be joining us. There seems to be some internet issue, so please bear with us. We are trying to call him. मॅडम त्यांच्या नेटवर्कला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, ते मोबाईल वरनं कनेक्ट होत आहेत. एक दोनच. Okay. हा. Sorry, huh? Hello. Am I audible? येस सर. Hello. हाँ सर बोलिए ना. Am I audible? येस सर. Sorry, huh? Yes, थोड़ा सा sir. network We issue can't हो गया था. see you. We can hear you. Okay, okay, okay. But host disable participants screen sharing. I'm not able to share the screen. Um, रेश्मा हाँ सर. हेल्प आहे का तुझ्याकडं स्क्रीन काय त्यांचे काय काय प्रेझेंटेशन आहे का? स्क्रीन शेअर करायची ना त्यांना राधेश्यामला. एक मिनिट. तुझ्याकडनं शेअर करते चेक कर. मी हो. PPT पाठवतो लगेच मग. मी मेलवर पाठवलं that would be होतं. great, sir. हा 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 मी मेलवर PDF डॉक्युमेंट्स पाठवलं होतं. अच्छा, मग मला पीपीटी पाठवा ना. लगेच 2 मिनिटं. पुणे डॉट मेल ID मॅडम cpe@puneici.org PPE डॉट @puneici.org. पाठवली मी. जर शेअर स्क्रीन केलं तर थोडंसं इझी होईल, म्हणजे मी टाइमली हे करू शकेल. हो सर, तुम्ही पाठवलेत का? हा मेल पाठवलाय मी. हा, मग रेश्मा प्लीज शेअर करते. हो करते, एक दोनच मिनिटं.
Meanwhile, I will inform some information about the COVID-19, which Pune branch have already started help for members and students. Okay, screen is shared. Radhesham, you can Full continue. screen कर रेशमा. स्लाइड शो करावं लागेल. स्लाइड शो. रेशमा slide show. Right side. Transition च्या बाजूला. Right side. आणखीन एक. अजून एक रेशमा, ॲनिमेशनच्या बाजूला रेशमा. स्लाइड शो. Animation च्या नंतर. ट्रान्झिशन नंतर ॲनिमेशन अजून एक. Next tab. नेक्स्ट. From current slide. क्लिक करा एरो. दिसतंय का? हो हा. हो दिसतंय. पुढे जा रेशमा. हो. स्नेहल मॅडम, ते शेअर स्क्रीनचा ऑप्शन नाही का हे करता येणार ऍक्टिव्ह? सर बघतो. 1-2 मिनिटं करते सर. होस्ट कर ना. राधेश्याम होस्ट नाही का? हो करते. मग ते सोपं होऊन जाईल. झालं सर. माझ्या इथनं हा स्टॉप करू का? तुमच्या इथनं स्टॉप करून टाक. हायर प्रोडक्टिविटी, बैलेंसिंग ऑफ वर्क बिटवीन टीम मेंबर्स. बहुत बार ऐसा होता है किसी स्टाफ के पास में बहुत सारा काम होता है और किसी के पास में बहुत कम रहता है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं रहता कि किसके पास में क्या क्या काम है. तो जो टीम में वर्क एलोकेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए टीम मेंबर्स के बीच, तो ही आपको हायर प्रोडक्टिविटी आपके टीम से मिलेगा. थर्ड वन इज राइट टास्क विथ राइट टीम मेंबर्स. कभी कभी ऐसा होता है जो एक्सेल का एक्सपर्ट है उसको टैली के काम एलोकेट हो गए, और जो टैली का एक्सपर्ट है उसको एक्सेल के काम एलोकेट हो गए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको जो एक्सपर्ट है, जो स्टाफ अपने पास में, उसको उसी फील्ड का काम एलोकेट होना चाहिए. जीएसटी वाले को इनकम टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए. चौथी चीज है फॉलोअप. किसी भी काम के लिए फॉलोअप अगर अपन करते हैं तो वो टाइमली कंप्लीट हो सकता है. जैसे अपने पे खुद से ही एग्जांपल लो, जैसे असेसमेंट का लास्ट डेट रहता है, ऑफिसर आपको अगर 2-3 फोन कर देता है कि अक्टूबर में ही फोन करता है, लास्ट डेट तो दिसंबर है, लेकिन अक्टूबर में ही फोन करता है कि आपको आना पड़ेगा, जल्दी कंप्लीट करना है. एक फोन को अपन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उसके ही 2-3-4 अगर फोन आ गए हैं तो अपन बोलते हैं कि नहीं यार अभी ये प्रायोरिटी पे लेना चाहिए. तो अपना अगर बहुत कंटिन्यू फॉलोअप रहता है तो अपने को डेटा जो मिलना है उसका टाइम कम हो जाता है और टाइमली काम हो जाता है. तो फॉलोअप बहुत जरूरी है. पांचवी चीज है कि डेलीगेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक काम खुद मैं ही करूं. तो जो काम डेलीगेट कर सकते हैं वो अपन ने डेलीगेट करना चाहिए. इससे आपका टाइम बचेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. फिर दूसरा चीज है मोटिवेशन. आपकी टीम मोटिवेटेड कैसे रहेगी? पहला है कि फ्रीडम विथ कंट्रोल. आपके स्टाफ को जो है वो टोटली वर्क का फ्रीडम होना चाहिए और साइमल्टेनियसली उस पर कंट्रोल भी आपका होना चाहिए. तो आपकी टीम एनी टाइम मोटिवेटेड रहेगी. दूसरी चीज है कि वीकली और मंथली मीटिंग करो आप, और स्टाफ के जो भी प्रॉब्लम्स है
वो डिस्कस करो, उनको ऐसा एक फ्री प्लेटफॉर्म दो कि जहाँ पे वो उनके प्रॉब्लम डिस्कस करे, ऑफिस वर्क रिलेटेड, वर्किंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड, और उस पे सोल्यूशन भी निकालो। आपने एक जन को कुछ टैली का काम दिया है लेकिन उसको जर्नल एंट्री आती ही नहीं, अगर ऐसा फ्रीडम वाला एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो वो हिचकिचाएगा, कैसे बोलूं, नहीं तो फिर मेरे को सर नौकरी से निकाल देंगे, ये होगा। तो अगर समझो ऐसा वीकली या जो भी मीटिंग रहेगा उसमें वो बोलेगा कि सर मुझे ये काम करने में दिक्कत आती है, तो आप उसका सोल्यूशन निकालो कि ट्रेनिंग दो, या जो स्टाफ क्वालिफाइड है उसमें उसको बोलना कि इसको थोड़ा सा समझा के दो, तो उसको भी ऐसा एक फील होगा कि ये ठीक है, ये ऑफिस मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी काम दिक्कत आती है तो मेरे को उसका सोल्यूशन देते हैं, तो वो मोटिवेटेड रहता है। तीसरा है कि लो एट्रिएशन रखना है, तो इसके लिए आपको सेट प्रोसेस करना है, हर एक काम जो करने का है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से ही होना चाहिए, इससे आपका लो एट्रिएशन रहेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में जब भी लो एट्रिएशन रहता है तो वहाँ की टीम मोटिवेटेड रहती है। चौथा है टाइमली ट्रेनिंग एंड अपडेट्स। कोई भी नया अपडेट्स आता है तो जो स्टाफ वर्किंग करता है उसको आप अपडेट देने का सिस्टम बना के रखो, नहीं तो उसने क्या किया, पूरा जीएसटी का डेटा निकाल दिया और आपने बाद में बोला अरे यार ये फॉर्मेट में नहीं, ये फॉर्मेट में चाहिए अपने को क्योंकि लॉ अपडेट्स ऐसा ऐसा हो गया, तो उसका जो पहला वर्किंग है उसका टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे ही समझो कुछ भी लॉ अपडेट्स आता है तो उसका इंफॉर्मेशन इमीडिएटली वो स्टाफ को, जो जो काम करते हैं वो स्टाफ को मिलना जरूरी है। और वैसे ही टाइमली ट्रेनिंग दो कि नया मार्केट में कुछ भी आया है, समझो टूल आया है, सॉफ्टवेयर आया है, या कुछ और नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आया है, आप उसका परचेस कर रहे हो तो उसको ट्रेनिंग भी दो स्टाफ को कैसे यूज करना। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, अपन ट्रेनिंग ही देते नहीं, आप देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आधा घंटा ट्रेनिंग जो है पूरे स्टाफ को दे दिया तो उनके क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे, उनका भी टाइम बचेगा बाद में का और अपना भी टाइम बचेगा। और उसके बाद में है प्रॉपर टीम साइज। आपके पास में वर्कलोड जितना है उसके हिसाब से आपकी टीम जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा रहा तो आप वैल्यू एडेड सर्विसेज भी चालू कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिससे आपकी टीम मोटिवेटेड रहेगी। थर्ड है कि टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट मीन्स कंप्लीट कंट्रोलिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल टास्क। टास्क मैनेजमेंट में एक 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि आपको वो प्रायोरिटी जो है टास्क का वो मालूमात होना जरूरी है। पहले एग्जांपल में अपन ने काम कर दिया लो प्रायोरिटी वाला, तो वो प्रॉपरली टास्क मैनेजमेंट नहीं है। आपको हाई प्रायोरिटी वाला काम पहले करना है, लो प्रायोरिटी वाला बाद में करना है। तो आपको वो काम का प्रायोरिटी मालूमात होना चाहिए। दूसरा चीज है कि ऑल रिक्वायर्ड फाइल्स एट अ सिंगल लोकेशन। नहीं तो बहुत बार काम करते वक्त क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे आया है, कुछ मेल पे आया है, कुछ क्लाइंट ने फिजिकली लाके दिया है। ऐसा अगर स्कैटर डॉक्यूमेंटेशन है काम करते वक्त तो वो काम जल्दी खत्म नहीं होगा। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लेके आना जरूरी है। तीसरी चीज है फिनिश रिलेटेड टास्क। कोई एक काम अपन खत्म कर दिया, जैसे कि टैक्स ऑडिट अपन ने साइन कर दिया, लेकिन उसके बाद में और एक काम है कि यूडिन जनरेट करना है। अगर यूडिन अपन इमीडिएटली तभी अगर करते हैं तो अपना 1 से 2 मिनट में काम हो जाता है, क्योंकि अपने को पूरा रिव्यू करने का जरूरत नहीं रहता है। अगर हो सकता है 99% काम उससे रिलेटेड आगे के जो काम है और जो थोड़ा टाइम लेते हैं वो इमीडिएटली खत्म करो। नहीं तो वो यूडिन भूल गए, 15 दिन हो गए फिर, और वो अपना हेडेक बढ़ाते हैं। तो जितना हो सके उसके आगे के रिलेटेड काम, छोटे छोटे जो काम है वो इमीडिएटली खत्म कर दो। चौथा है टाइमली रिमाइंडर फॉर एक्शंस। आपको हर चीज का, काम के रिलेटेड जो भी रिमाइंडर्स चाहिए वो टाइमली, नहीं तो जीएसटी का रिटर्न है 20 तारीख का और आपको समझो ये तो ध्यान में रहेगा, लेकिन जीएसटी ऑफिसर का नोटिस आया है कि 2 ईयर रिकंसिलेशन है और आपका पेनल्टी का नोटिस भेजा है, आप मेरे को 10 तारीख तक डेटा सबमिट करो, और आपको कोई रिमाइंडर आया ही नहीं, उसका ध्यान में ही नहीं रहा, तो वो काम भूल गए, इसकी वजह से आपका बाद में हेडेक बढ़। तो हर काम के लिए आपको
टाइमली रिमाइंडर आना जरूरी है, अकॉर्डिंगली आप उसका एक्शन ले सकते हो। छोटी सी चीज है कि आपका लाइट बिल नहीं भरा, इंटरनेट बिल नहीं भरा है आपने, और उसका क्योंकि क्या है, उसका रिमाइंडर नहीं आया, आपका इंटरनेट बंद कर दिया, ऑनलाइन था, तो इसकी वजह से आपका समझो 4 घंटे का 6 घंटे का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपको हर एक एक्शन के लिए आपको रिमाइंडर आना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फिल्टरेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अपना जो टोटल टास्क लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, अपने को जैसा चाहिए वैसा उसमें फिल्टरेशन या सेग्रीगेशन मिलना चाहिए। कि मुझे समझो एक आधा कोई क्लाइंट आया, उसके टोटल काम कितने हैं, एक आधे एम्प्लॉय को बुलाया है मैंने, तो उसके पास में क्या क्या काम पेंडिंग है। कोई आप जीएसटी ऑफिस पे जा रहे हो, जीएसटी ऑफिस के क्या क्या काम पेंडिंग है। एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स के नोटिस रिप्लाई क्या है, कितने देने के हैं मुझे। तो ऐसे हर टाइप का स्टेटस वाइज ये वो अपने को फिल्टरेशन मिलना चाहिए, तो उससे अपना प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ेगा यानी बढ़ेगा। तो ये अगर आपका मैनेज है, ये 5 चीजें अगर प्रॉपरली मैनेज है, तो आपका टास्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। उसमें इम्प्रूवमेंट आप और करते रहिए जैसे जैसे आपको डिफिकल्ट। फोर्थ टी है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी मीन्स एनीथिंग विच कैन सेव अवर टाइम और कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और स्मूथ वर्क प्रोसेस। दिस इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी एक मिनट, टेक्नोलॉजी अभी आज की चेंजिंग वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी भी चेंज होते रहती है, तो अपने को नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर अपन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो अपन एब्सोल्यूट हो जाएंगे। आपको छोटा सा एग्जांपल है, आज जो अमेजोन पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ग्रोसरी शॉप है आपके बाजू में, एक जन उसका ऑनलाइन खुद का स्टोर है और एक जन खाली शॉप ही रन कर रहा है, उसका कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं, कुछ नहीं। तो आप प्रेफरेंस उसको देंगे, उसका जिसका ऑनलाइन स्टोर भी है और ऑफलाइन शॉप भी है, उसको प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि आपको जरूरत जब रहेगी तब वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऐसे थोड़े दिन से जिसका ऑनलाइन शॉप नहीं है उसका बिजनेस कम कम होते जाएगा, और जिसका ऑनलाइन शॉप है उसका बिजनेस बढ़ते जाएगा। तो आपको हर एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नया टेक्नोलॉजी और अडॉप्ट करो। चेंज इज द लाइफ, चेंज इज द लाइफ बट एक्सक्लूडिंग वाइफ। आपको जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे पागल होना जरूरी है, कि नया कुछ भी टेक्नोलॉजी आया मुझे उसका इंफॉर्मेशन लेना है और वो मुझे इम्प्लीमेंट करना है, उसका कंपैरिजन करके मुझे जरूरत है, उसका कॉस्ट क्या है। लेकिन आप उसके पीछे पागल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के पीछे। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर क्वाइट यंग, हैंडसम एंड ब्रिलियंट। सो आप पागल हो गए किसी के पीछे तो चलेगा, लेकिन अच्छी चीजों के पीछे पागल हो जाना, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने को। तो टेक्नोलॉजी चॉइस करते वक्त अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान में रखना है। पहली बात है सिक्योरिटी, कि जो अपन टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं वो फुल्ली सिक्योर्ड है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है सिंप्लिसिटी, यानी इजीली अंडरस्टूड टू एनीवन। टेक्नोलॉजी अपन ने चॉइस कर लिया है, लेकिन वो आप समझो आप सीए हो तो आप क्वालिफाइड हो, आपका नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा है, तो आप कुछ भी चीज जो है वो इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। लेकिन आपका स्टाफ उतना क्वालिफाइड नहीं है, उसका नॉलेज लेवल उतना नहीं है, तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। आप तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन स्टाफ अंडरस्टैंड नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल टू यूज। तीसरा है सपोर्ट, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका सपोर्ट अवेलेबल है क्या, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और उसका रिव्यूज वगैरह आप चेक कर सकते हो कि उनका सपोर्ट वगैरह कैसा है। तो अपने को कुछ दिक्कत आ जाती है तो अपने को सपोर्ट भी मिलना जरूरी है। चौथी चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि यू हैव टू स्टार्ट।
जैसे कि अपन बहुत ये होता है, अपना बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं कुछ भी ये होने के बाद, कि नहीं अभी ऐसा लगता है कि अपन यहाँ से अभी समझो ये वेबिनार हो गया और ये वेबिनार खत्म होने के बाद में इमीडिएटली लगेंगे कि इंटरनेट पे सर्च कर देंगे कि हाँ चलो ये ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट ऐसा है। लेकिन कैसा है, वैसा होता नहीं। अपन यहाँ से हो गया, भूल गए। अभी ऑफिस लॉकडाउन तो है समझो और 15 दिन का, 16 तारीख को अपन ऑफिस पे चले गए और भूल गए और अपन अपने रेगुलर वर्किंग में लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है कुछ भी ये करने, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में है तो उसको आपको यूज करना जरूरी है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप फिनिश नहीं कर पाओगे। कोई भी काम जो है विदाउट स्टार्ट यू कैन फिनिश। तो आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का स्टार्ट करना जरूरी है। यू हैव टू स्टार्ट। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे कोई भी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आपके ऑफिस को नहीं होगा। और ट्राई फॉर न्यू, यानी नए नए टेक्नोलॉजीज क्या है उसके थोड़े से आप आपके फ्रेंड्स को भी डिस्कस करो आपका प्रॉब्लम, कि मुझे समझो अकाउंटिंग के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, के लिए तू कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, आपके फ्रेंड्स में डिस्कस करो। या आपको कम टाइम में अच्छे रिजल्ट देगा, वो बोलेगा कि हाँ मैं ये यूज करता हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप उसको इमीडिएटली देख लो, आपको अच्छा लगा उसको इमीडिएटली चालू कर दो। आपको कोई भी चीज इमीडिएटली चालू करना बहुत जरूरी है। इसेंशियल और ऑप्शनल सॉफ्टवेयर, इसका एक नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें मैंने बताया है कि कुछ छोटे छोटे कुछ कुछ जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है कि जो आपके ऑफिस मैनेजमेंट में आपकी सहायता करेंगे या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। उसका एक नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें बताऊंगा। एक चीज है कि हाई स्पीड कंप्यूटर्स, किसके पास में, किसके ऑफिस में एसएसडी इंस्टॉल्ड है। एसएसडी और हार्ड डिस्क, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसके ऑफिस में एसएसडी इंस्टॉल्ड है, यस लिखिए वो। माइन, ओके। विंडोज सर्वर 1 2 3 4, ओके 5, ठीक है। बहुत जनों के पास में है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है कि जिनके पास में एसएसडी नहीं है। तो आप कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर तो बोलता है कि आपका स्पीड जो है वो 10 गुना बढ़ेगा एसएसडी से, लेकिन अपन 5 गुना भी पकड़े तो भी अपना बहुत सारा टाइम सेव करेगा। तो अपने ऑफिस में अगर ये कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर को बोल के एसएसडी लगा, उसके साथ में आपके कंप्यूटर का या सर्वर का जितना रैम है मैक्सिमम उतना रैम आप इंस्टॉल करो। आपका सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा कि उसका जरूरत नहीं, 8 GB का रैम सफिशियंट है। आपके कंप्यूटर का कैपेसिटी अगर 16 GB है, 32 GB है, तो आप उतना पूरा इंस्टॉल करो। उससे आपके सभी का अच्छी स्पीड मिलेगी और आपके टीम का टाइम सेव होगा। जैसे कि समझो स्टार्ट होने को पहले अगर 1 मिनट लग रहा है, ये पूरा इंस्टॉलेशन हाई स्पीड अगर कर दिया, इंटरनेट, रैम, एसएसडी, तो उसका टाइम 10 सेकेंड पे आता है। तो रोज आप अगर समझो 50 सेकेंड्स हर एक स्टाफ का अगर कैलकुलेट करते हो तो ये बहुत बड़ा टाइम सेव होता है। और कॉस्ट जो है वो बहुत कम, यानी 8-10 हजार में मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए सब। तो ये जो है ये आपको टेक्नोलॉजी का यूज इस तरीके से लेना जरूरी है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। इसेंशियल और यूजफुल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फॉर सीए ऑफिसेस। पहला है वन ड्राइव, ऑनलाइन क्लाउड बैकअप। ये कितने जन यूज करते हैं, रिप्लाई दो। जी ड्राइव, गूगल ड्राइव, ओके, यस यस। वन ड्राइव, ओके ठीक है, 5-6। जी ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ओके ठीक है, वन ड्राइव। तो जी गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, हर एक के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है। लेकिन वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट्स होने की वजह से अपने को एक्सेल और वर्ड्स के रिलेटेड जो भी है उसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो आप एक बार ट्राई भी करके देख लो, वन ड्राइव वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके, उसका फ्री वर्जन है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन यानी कंप्यूटर का जो बैकअप है वो एक ऑनलाइन वर्जन मेंटेन हो जाता है ऑटोमेटिकली। कि जैसे डेस्कटॉप वर्जन है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक मिरर इमेज आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप आपके सर्वर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्लाउड में वो डिलीट हो जाती है।
आप मोबाइल से अपलोड करते हो तो क्लाउड पे अपलोड होके आपके डेस्कटॉप वर्जन से आपके सॉरी आपके डेस्कटॉप वर्जन पे ऑटोमेटिकली ऑफलाइन भी अपडेटेड हो जाती है। यानी आपको कोई चीज बैकअप लेने के लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज है ऑफिस मैनेजमेंट टूल। सीए सर्व जो है वो एक ऑफिस मैनेजमेंट टूल है, उसके फीचर्स अपन बाद में, तो ऑफिस मैनेजमेंट का टूल भी होना जरूरी। तीसरा है जैसे कि अभी अपन जूम का मीटिंग कर रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मीटिंग ले रहा है, कोई गूगल मीट ले रहा है, ऐसे ऑनलाइन मीटिंग के लिए आपको ये टूल्स होना जरूरी है जिससे आपका टाइम से होगा। पीडीएफ अभी फेसलेस असेसमेंट और हर जगह अपने को डॉक्यूमेंटेशन स्कैन कॉपीज में ही चाहिए, तो पीडीएफ कन्वर्टर जो है, पीडीएफ कन्वर्टर स्प्लिटर, ये जो फंक्शनैलिटी है पीडीएफ रिलेटेड ऑल, उसका एक एप्लीकेशन पेड वर्जन होना जरूरी है। फ्री वर्जन है बहुत सारे वेबसाइट्स है या ये है जो फ्री में कन्वर्ट करा के देते हैं, लेकिन उसका कंप्रेशन रेशियो, क्वालिटी और उसमें टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप ऑनलाइन फाइल अपलोड करोगे 10 एमबी का, वो कन्वर्ट करा के आपको 7 एमबी का देगा, वो वापस डाउनलोड करोगे, इसमें जो टाइम जाएगा आपका और कंप्रेशन भी 30% ही होगा। वही अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन अगर है तो आपको ऑफलाइन ही आप 10 फाइल एट ए टाइम कंप्रेस कर सकते हैं विद इन अ मिनट। तो आप पीडीएफ जो पीडीएफ कुछ भी समझो, पीडीएफ बहुत सारे, आई लव पीडीएफ वगैरह बहुत सारे हैं, तो उसमें से आप कंपैरिजन करके आप वो सॉफ्टवेयर यूज करो और उसका पेड वर्जन लो, फ्री वर्जन मत लो। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव करा देगा वो। मैं पर्सनली स्मॉल पीडीएफ यूज करता हूँ, उसके मैं एक स्मॉल स्लाइड में उसके बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ। जिसका जिसका जैसा एक्सपीरियंस है आप वो चेक कर सकते हो। पांचवा है एडवांस एमएस ऑफिस, एक्सेल और वर्ड। अगर अपन 2013 वगैरह एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं तो 2016 का आप यूज करना चालू कर दो। कोई भी एक्सेल या वर्ड ऐसा एमएस ऑफिस का एडवांस एक्सेल वर्ड का वेबिनार है तो आप वेबिनार अटेंड करो। उसमें आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटी जो अपने सीए ऑफिस का बहुत सारा वर्कलोड, स्मार्ट वर्क जो करने का है, उसमें अपने को बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर एमएस ऑफिस का कोई भी वेबिनार है तो आप एक बार अटेंड करो, सीरीज है तो सीरीज अटेंड करो। उसके बाद में टैली प्राइम, ये तो आप सभी को पता है टैली का। गूगल कीप और वन नोट, जैसे मैंने बोला था कि स्मॉल थिंग्स नोट पैड करके रखना है, तो आप गूगल कीप एक अच्छा ऑप्शन है, वन नोट है, उसके बाद में ये एवर नोट है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। लेकिन गूगल कीप जो है वो थोड़ा सा सिंपल है और अपना गूगल अकाउंट से वो सिंकिंग होते रहता है, तो ऑनलाइन और मोबाइल में भी और अपने पीसी पे भी अपन यूज कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स, ये एक बहुत अच्छा टूल है। ये एक अच्छा टूल है गूगल फॉर्म्स। कभी भी कुछ अगर चेंजेस होता है या अगर कुछ क्लाइंट से अपने को डेटा अगर कलेक्ट करना है, कि जैसे समझो आपको एक क्लाइंट का फोन डायरेक्टरी बनाना है, एक एग्जांपल, तो आप सिंपली एक गूगल फॉर्म क्रिएट करो गूगल में से, आपके अकाउंट में से, और उसका लिंक व्हाट्सएप पे भेज दो और सबको एक लिख दो कि आपका वो ये डेटा भर के दे दो। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। वो जो डेटा फीड कर देंगे ऑटोमेटिकली आपको एक्सेल में मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी डेटा कलेक्शन अगर करने का है क्लाइंट को, आप ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग शीट्स बना के जीएसटी डेटा कलेक्शन करने का है तो वैसा भी, यानी आपको सुटेबल है तो वैसा भी कर सकते। क्लाइंट उधर से डेटा भर दिया, ऑटोमेटिकली एक्सेल में आ गया। तो आप ऐसा एक गूगल फॉर्म बना दो कि जैसे जीएसटी रिटर्न्स के लिए आपको डेटा लगता है और उसका एक सिंपली लिंक भेज दो, तो उसमें वो डेटा भर के आ गया तो इमीडिएटली वो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली डेटा फीड हो जाएगा। तो ऐसा आप ऑफिस में ट्रायल कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट पास, रिमेम्बर पासवर्ड। अपने पास में बहुत सारे पासवर्ड है, यानी अपने खुद के तो है ही, अपने क्लाइंट के, इसके उसके भी अपने को बहुत सारे मेंटेन करने पड़ते हैं। तो लास्ट पास एक मोबाइल ऐप है, उसमें आप जो पासवर्ड्स है
सेव करके रख सकते हो। एक्सेल में भी रखो साइमल्टेनियसली। अगर यहाँ है तो आपको एक्सेल बार बार ओपन करने का जरूरत नहीं, मोबाइल ऐप है, सर्च करके देख लो। तो इसमें जो है आपके जो जो नॉन बैंकिंग जो पासवर्ड्स है, जैसे इनकम टैक्स साइट का, जीएसटी साइट का, और कुछ अपने आईसीएआई के है, समझो यूडिन लिंक है, ये सीपीए अवर्स है, ये है, बहुत सारे ऐसे बहुत जगह पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे पासवर्ड रखते हैं। अपन अलग अलग रखते हैं, सेम ही रखते हैं, लेकिन आप उसको सेव करके रखो। तो ये फॉरगेट पासवर्ड हर जगह है, लेकिन उसमें अपना टाइम पास होता है। तो ये टाइम पास जो है अपने को कम करना है। फिर उसके बाद में एसएमएस ऑर्गेनाइजर, ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है, ओनली फॉर एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड ऐप ही है ये। तो इससे क्या है, आपके जो एसएमएस है पूरे सेग्रीगेटेड हो जाते हैं। मार्केटिंग के एसएमएस कौन से है, ट्रांजैक्शनल एसएमएस कौन से है, कॉन्टैक्ट से आए वाले एसएमएस कौन से है, उसमें रिमाइंडर का भी उन्होंने फैसिलिटी दिया है। यानी आपको एक कोई एसएमएस आया है कि इंस्टॉलमेंट पे का एसएमएस है, तो आप उसको रिमाइंडर के इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। और जो मार्केटिंग के एसएमएस है वो एट ए टाइम आप पूरे मार्केटिंग सेक्शन ही अलग है तो पूरे एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एसएमएस ऑर्गेनाइजर, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो फुल्ली सिक्योर्ड है। और आईफोन वालों को तो आईफोन वाले ने बाय डिफॉल्ट दिया है, तो उनको कोई वेब पे कोई है नहीं अवेलेबिलिटी इसका। एनी डेस्क और टीम व्यूअर, किसी का भी स्क्रीन शेयरिंग और ये करने के लिए सिंपल एप्लीकेशन है। ऑफिस लेंस है, मोबाइल में जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपने को स्कैन करके अगर किसी को भेजना है, तो ये अगेन ये ऑफिस लेंस बोल के एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे स्कैम स्कैनर ये वो है, वैसा ही ऑफिस लेंस है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा है। जैसे ही अपन फोटो ले लेते हैं तो 4 बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ले लेता है, अपने को एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है उसमें अगेन। तो ये ऑफिस लेंस ये प्रोडक्ट है। कर्म से एक है, रिमाइंडर और ग्रुप मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद में स्कैनर है। आपके ऑफिसेस में बहुत जनों के पास, कितने जनों के पास में सेपरेटली ओनली स्कैनर है। लास्ट पार्ट सिक्योर है, बहुत जन यूज करते हैं उसका। और इसमें अपन नॉन बैंकिंग पासवर्ड सेव करके रखने का, क्योंकि जनरली अभी मैं तो 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई लोग 7-8 साल से यूज कर रहे हैं, उनका भी फीडबैक अच्छा है। और आप उसके डाउनलोड्स और उसके रिव्यूज भी देख सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी के डिजायरेबल साइमल्टेनियसली आपको डिजास्टर प्लान भी रेडी करके रखना है। जैसे कि वन ड्राइव में समझो आपका ऑनलाइन बैकअप हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको एक महीने में या 15 दिन में आपका ऑफलाइन बैकअप भी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टोटली अपन 100% टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट रहो। ऑफलाइन भी जो जो इम्पोर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे है वो वैसा करके रखना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो गया हार्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ में, लेकिन हार्ड डिस्क जो है बैकअप लेके अपन ऑफिस में ही रखते हैं, चोरी हो गई या फायर हो गया और उसमें वो पूरा चले गया, उस वक्त क्या करना। तो अपने को साइमल्टेनियसली क्लाउड पे भी होना चाहिए और ऑफलाइन भी होना चाहिए। क्लाउड पे रख के समझो एक आधी बार वो साइट जो है वो हैंग हो गई या रैंसमवेयर की वजह से डेटा करप्ट हो गया है, तो आपके पास में हार्ड कॉपी भी होना चाहिए। Just a moment, Radhesham, I will interrupt you. हाँ, When some participants are writing their question answer in chat box, I request please write your question answer in question answer tab, because otherwise it will miss, as the Radhesham may take the question at last together. So it may possible that if you write in chat box, the question will miss. So I request again, please write whatever you have query in question answer tab. तो किसके ऑफिस में एक पर्सनली स्कैनर है, ओनली स्कैनर है, क्योंकि बहुत जनों क्या बोलते हैं हमारा प्रिंटर कम स्कैनर जो है वो एक ही है, फ्लैप वाला स्कैनर है। तो उसमें आपको अगर 25 पेजेस स्कैन करने के हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, और हर एक का फाइल साइज भी बढ़ेगा, एचपी का या इसका है जिसके पास। तो अगर ये आप कैनन का एक स्पेशलाइज स्कैनर है, उसका कॉस्ट कुछ तो 30-35 हजार है, लेकिन अगर ये लेंगे
तो आपको 25 पेजेस एट ए टाइम डाल के उसका एक ही फाइल बनाएगा और बहुत कम साइज में बनाएगा। तो आपके ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड जो है, पिछला पूरा रिकॉर्ड आप एक बार इससे स्कैन करके रख दो और इससे आप कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी चालू कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, स्कैनिंग सर्विसेज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो है, कोई भी कैनन हो या और दूसरे कोई कंपनी का है, फिजिट्सी है, ये है, तो आपके कंप्यूटर सप्लायर जो है उससे पूछ के हाई स्पीड स्कैनर लो, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। उसके बाद में बैक टू बैक प्रिंटर भी होना चाहिए आपके ऑफिसेस में, नहीं तो सिंगल साइड प्रिंटर है, बैक टू बैक करना है तो अपन पेजेस फिर उल्टा करके लगाओ और फिर ये करो, ऐसा नहीं है। HP का हो या ब्रदर का इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका कॉस्ट बहुत कम है, 6-7 हजार रुपए में बैक टू बैक प्रिंटर आ रहा है। तो वो एक बैक टू बैक प्रिंटर भी अपने ऑफिस में होना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कैनर और बैक टू बैक प्रिंटर ये कंपलसरी हो गया, इससे आपका टाइम बहुत सारा सेव करेगा और आपका बैक टू बैक प्रिंटर की वजह से आपको कॉस्ट भी कम लगेगा। नहीं तो बैक टू बैक में ये उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, तो अपन टैक्स ऑडिट प्रिंट 25 पेजेस का 1 to 25 सिंगल साइड, वही अगर बैक टू बैक है तो आपका 13 पेजेस में काम हो जाएगा। तो ये कॉस्ट भी सेव करता है और टाइम भी सेव करता है। विनजिप है, ये अभी अपने ऑफिसेस के लिए जरूरी है। ऐसे ये कुछ स्मॉल टूल्स बहुत सारे हैं ऐसे, तो एक थोड़े से हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सीए ऑफिसेस के लिए चाहिए, वो मैंने बताया है। ये 4T हो गया। अभी FC रोड का F, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में मॉडल फाइल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अपने ऑनलाइन जो अपना कंप्यूटर है उसमें मॉडल फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। दूसरा है अपना फाइल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट जैसा। एक चीज बहुत अच्छी है गवर्नमेंट में, उनका फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छा तरीके से होता है। आप उन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके या इनकम टैक्स 30 साल 10 साल पहले का 15 साल पहले का कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन अगर फाइल मंगाते हैं तो 99% उनका फाइल मिलता है। इवन दो कि 30 साल में इतने सारे आदमी चेंजेस हुए वाले रहते फाइलिंग करने वाले, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अपने को बहुत अच्छे तरीके से निकाल के देते हैं शॉर्ट पीरियड में। आप वैसी सिस्टम अपने पास में अपने ऑफिस में होना चाहिए कि राइट टाइम पे राइट फाइल जो है अपने को विद इन नो टाइम मिलना चाहिए। मैंने लिस्ट मेरे को चाहिए तो 1 मिनट में मेरे को मेरे टेबल पे होना चाहिए। तो ऐसे अपने पास में फाइल मैन। तीसरा है स्कैनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अपने फाइल्स पूरे जो है वो स्कैन करके रख दो, इससे आपका टाइम भी सेव होगा, कॉस्ट भी सेव होगी, मैन पावर का टाइम भी सेव होगा। नहीं तो कुछ अपने को डॉक्यूमेंटेशन लग गया है, अरे यार 15-16 का मेरे को TDS का चलन चाहिए, नोटिस आया है, उनको रिप्लाई देना है, तो फाइल में देखते बैठो। ये अगर आपके पास में अगर प्रॉपरली फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है और स्कैन डॉक्यूमेंटेशन है तो आप 1 मिनट में वो फाइल निकाल के सामने वाले को मेल कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। रेज हैंड। मैं चौथी चीज है सिक्योरिटी। जैसे अपना फाइल जो भी है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। एक तो फायर प्रूफ अपना, यानी थोड़ा सा कुछ इंस्टॉलेशन हो सकता है तो करो। ऑनलाइन के लिए तो यानी जो भी टूल्स है वो यूज करो, लेकिन अपना फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। वायरसेस, रैंसमवेयर, इससे उससे आपका सिस्टम जो है वो फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। तो मॉडल कंप्यूटर फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। बहुत जनों का फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट वाइज होता है जनरली, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर है, उसके अंदर क्लाइंट का फोल्डर है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्ट है लॉन्ग टर्म में। इससे अच्छा क्या है कि पहले आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्लाइंट ग्रुप का एक फोल्डर बनेगा, ग्रुप वाइज फाइल्स है, ग्रुप में क्लाइंट वाइज फाइल्स बनेगा।
और क्लाइंट वाइज फाइल्स में आप डिपार्टमेंट वाइज फाइल बना दो, कि जैसे ऑडिट का, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, आरओसी का, टीडीएस का, या ऐसा फोल्डर बनाओ। जैसे फिर इनकम, मैंने यहाँ पे इनकम और टैक्स के बीच में जानबूझ के स्पेस छोड़ा है। मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है। और फिर इनकम टैक्स के इसमें मैंने असेसमेंट ईयर वाइज फोल्डर बनाया है, AY। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया है 18-19, स्पेस नहीं छोड़ा है। तो ऐसे ही असेसमेंट ईयर वाइज नोटिसेस ज्यादा है, हर एक साल को है तो हर एक साल के अंदर में नोटिसेस फोल्डर बनाओ, या कम है तो आप नोटिसेस का एक सेपरेट फोल्डर बनाओ। वैसे ही फिर असेसमेंट ईयर समझो 20-21 का है, उसमें और सब फोल्डर बना दो, डॉक्यूमेंटेशन। और एक फाइनल सेट का हर एक इसमें एक फोल्डर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इतने सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, अपने को बाद में 4-6 महीने के बाद में पता ही नहीं चलता कि फाइनल क्या था। तो जब भी आपका काम खत्म हो गया है, हर एक, जैसे ये यहाँ पे इनकम टैक्स फोल्डर है, इनकम टैक्स के अंदर में AY फोल्डर है, इसके अंदर में एक फाइनल सेट का फोल्डर होना जरूरी है। आपकी एक्सेल फाइल, टैक्स का फाइल, टैली का बैकअप, XYZ जो भी फाइनल चीज है वो फाइनल सेट में होनी चाहिए। यानी आगे कभी भी रेफरेंस अगर चाहिए तो अपने को खाली फाइनल सेट ही देखने का जरूरत पड़े। तो इससे बाकी के जो फाइल्स है वो आप मिसलेनियस फोल्डर बना के उसमें अंदर डाल दो, रेफरेंस के लिए चाहिए तो मिसलेनियस फोल्डर भी एक क्रिएट करके बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। कि जैसे जीएसटी का भी ऐसे मैंने बनाया, ईयर वाइज फोल्डर बनाया, 20-21 में मैंने चालान का अलग फोल्डर बनाया, 3B ऑडिट। तो ये ऐसा कम से कम फाइल अंदर, फोल्डर के अंदर जो है फाइल रहने दे चाहिए, लेकिन सब फोल्डर अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से बनाओ। थोड़े से फोल्डर ज्यादा बनेंगे अंदर अंदर जाने का, लेकिन वो अपना बाद में बहुत सारा टाइम सेव होना। तो ये ऐसा अपना ऑनलाइन कंप्यूटर का फाइल या फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। मॉडल ये है, ना कि क्लाइंट वाइज। क्योंकि आगे बेनिफिट कैसा है, अपन ने एक क्लाइंट का एक फोल्डर का अगर एक्सेस दे दिया तो ये पर्टिकुलर फोल्डर जो है उसको एक्सेसिबल हो सकते हैं, या पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का दे दिया तो वो पर्टिकुलर फोल्डर एक्सेसिबल हो जाते हैं, ना कि हर एक फोल्डर को एक्सेस देते बैठने का जरूरत पड़े अपने को। फाइल मैनेजमेंट के मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। पहले तो है ऑनलाइन फाइल्स के लिए, डोंट इंक्लूड स्पेस इन फाइल और फोल्डर नेम। जैसे मैंने इनकम टैक्स में लिखते हो क्या किया, इनकम स्पेस टैक्स। तो जो भी स्पेस होता है उसको विंडोज %20% रीड करता है। तो इससे कंप्यूटर का नॉर्मल स्पीड कम हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप जो है उसको स्पेशल कैरेक्टर यूज करो। जैसे अंडरस्कोर जो है वो दिखने को भी अच्छा दिखता है और समझ में भी नहीं आता है। तो कोई भी फाइल नेम है तो उसको, स्पेस है तो उसको अंडरस्कोर यूज करने की आदत डालो। और हो सके तो फाइल नेम के आगे आपका डेट भी डालने का कोशिश करते जाओ। कि जैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का है, आपने एक 25 तारीख को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया था, वो लेके गया बैंक में चेंजेस कुछ बोले हैं, तो आप क्या करते हो, 25 तारीख का कॉपी कर देते हो। तो अगर पहले की इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 25 तारीख का है, आपने फाइल नेम दिया है, दूसरा आपने कॉपी करके उसको 30 तारीख का कर दो, तो आपको बाद में रेफरेंस जब भी लगेगा तो लेटेस्ट डेट जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये फाइनल है बोल के। तो आपका जो है फिर वो ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा कि कौन सा फाइनल था, ये था क्या वो था। आप डेट क्रिएटेड या मॉडिफाइड के हिसाब से अब अगर आप देखोगे तो उसमें भी टाइम जाता है। तो इससे अच्छा फाइल डेट मेंशन करने का कोशिश करते जाओ फाइल नेम में। और हर एक फाइल नेम जो है, ऑनलाइन फाइल नेम, उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाओ। फाइल नेम कैसा देने का है, नहीं तो आप लिख रहे हो पहले क्लाइंट का नाम, फिर बाद में इनकम असेसमेंट ईयर और आगे कुछ लिख रहे हैं। स्टाफ आपका लिख रहा है पहले असेसमेंट ईयर, बाद में क्लाइंट का नाम, फिर बाद में टीडीएस है, चालान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऑफिस में जो भी फाइल ऑनलाइन सेव हो रही है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड कैसा कि फाइल नेम के लिए इनकम टैक्स का कुछ चलन है आपका, टीडीएस का, तो पहले क्लाइंट का नाम होना चाहिए, भले ही वो क्लाइंट के फोल्डर में ही सेव हो रहा है। लेकिन आप जब किसी को मेल करते हो
तब वो क्लाइंट का नाम रहा तो अपने को भी ध्यान में आता है कि अरे यार अपन ने सामने वाले को बराबर फाइल भेजा, या अपन जब वो ईमेल देखते हैं तब अपने को वो ओपन करने का जरूरत नहीं है कि कौन से क्लाइंट का है। नहीं तो 4-5 फाइल भेजे, फिर 4-5 फाइल देखते बैठो कि कौन से क्लाइंट का है। तो क्लाइंट का नाम भले ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एम्पावर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है तो आप EFC लिख दो खाली, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्लाइंट का नाम होना जरूरी है। अंडरस्कोर, फिर इनकम टैक्स का है क्या TDS का है, वो एक यानी डिपार्टमेंट आप ये करो। उसके बाद में असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद में मंथ या क्वार्टर है, अप्रैल या Q1 Q2। उसके बाद में और एक चीज आगे इम्पोर्टेंट है कि चलन अमाउंट भी ऐड करते जाओ। कभी कभी क्या होता है, अपन 3-4 चलन एक महीने के लिए पेड करते हैं और अपने को 10,000 रुपए का चलन चाहिए, तो अपने को ये लक अपना है फर्स्ट टाइम ओपन करे 10,000 का चलन ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपने को वो चारों फाइल जो है वो ओपन करके देखना पड़ता है। और ऐसा बहुत बार रेफरेंस अपने को लगता है, तो वो चलन अमाउंट भी आप ऐड करो। जैसे कि समझो 5,000 रुपए का चलन है अप्रैल 21 का, तो अगर आप समझो मंथ वाइज एक अगर डाले तो अप्रैल के लिए एक, मई के लिए दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ये नहीं किया तो आगे का, यानी सब जब आपको मर्ज करने का है तो आप बहुत सिंपल तरीके से मर्ज करते हैं। एक अगर डाला अप्रैल को, अगस्त के लिए समझो आपने 5 डाला, दिसंबर के लिए 9 डाला, तो ये सिक्वेंसली ऐसे आ जाएगा अप्रैल टू लेके मार्च तक। और अगर ये नहीं डालते हैं तो अप्रैल के बाद में आपका अगस्त में आएगा, तो थोड़ा सा। तो जैसे कि ये कंपनी का नाम डाला, फिर मैंने डिपार्टमेंट डाला, असेसमेंट ईयर डाला, फिर मंथ डाला और चलन अमाउंट डाला। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, समझो 10-15 सेकंड लगेगा, लेकिन किसी को भी समझ में आएगा। एम्प्लॉय हो, आप हो, कोई भी हो, तो आपको इमीडिएटली वो फाइल ओपन करके देखने का जरूरत नहीं है। तो इससे आपको ध्यान में आ जाएगा। और फिर 1 साल हो गया, जैसे कि 20-21 अभी खत्म हो गए, पूरे TDS चालान या पूरे GST रिटर्न या पूरे GST चालान 12 हो गए आपके पास में, सभी का मर्ज करो और एक ही फाइल रख दो, और बाकी के 12 आपको रेफरेंस के लिए रखने के हैं तो रखो, नहीं तो डिलीट कर दो। इसकी वजह से क्या है, आपका कंप्यूटर पे फाइल स्टोरेज कम हो गया है। या फिर आपको एक ही फाइल मेल कर दिया तो बहुत सिंपल तरीके से काम हो जाता है। और ये है कि ऑनलाइन आपका सिंकिंग बैकअप होना बहुत जरूरी है, यानी आपने इधर चेंज कर दिया तो मिरर बैकअप कौन सा भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लो, लेकिन वो यूज होना जरूरी है। ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट करके कर सकते हैं। जैसे कि अपने कंप्यूटर पे या सर्वर पे मिनिमम फाइल्स होना, और वो भी कॉम्प्रेस करके, जो भी आपके पास में PDF कॉम्प्रेसर और ये है, वो फाइल कॉम्प्रेस करके रख दो, तो आपका सिस्टम जो है स्पीड बढ़ेगा, बैकअप के लिए भी कम टाइम लगेगा। हार्ड को ऑफलाइन फाइल्स, ऑफलाइन फाइल्स जो है वो फाइल नंबर के साथ में, आपके ऑफिस में फाइल नंबरिंग ही नंबर के साथ में ही होना चाहिए। नहीं तो पहले जैसे सिस्टम थी ग्रुप वाइज अपन बना के उसका इनकम टैक्स, GST, ये वो सब एक ही फोल्डर बना के रखते थे या एक ही रैक में, वो थोड़ा सा अनकंफर्ट सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ फाइल्स फिर अपने को ही याद नहीं रहते। अपन बोलते हैं अरे यार वो वहां पे है, रेड कलर का फाइल है, वो लेके आ जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन ने बोला कि 151 नंबर का फाइल है, वो मुझे लेके आ जा, एक इंडेक्सिंग बना लो प्रॉपरली, तो इसमें आपके कितने भी फाइल्स बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और कुछ फाइल्स आपको निकाल के भी रखने हैं तो निकाल के रख दो, वो नंबर दूसरे फाइल से रिप्लेस कर दो, तो आपका ऑफिस स्टोरेज जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाता है। दूसरा है कि मेक सेपरेट फाइल फॉर एक्स्ट्रा डुप्लीकेट वर्किंग फाइल्स एंड स्टोर इट एट अ सेपरेट प्लेस। अपने नहीं तो इनकम टैक्स की फाइल है, उसमें ही बैंक स्टेटमेंट है उसका, उसमें ही फॉर्म 16 है, उसमें ही LIC के रिसीट्स है, सब कुछ उसमें ही है। तो मेन जब डॉक्यूमेंटेशन अपने को बाद में कुछ लगता है तो उसमें अपना टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा क्या करने का है, जो भी एक्स्ट्रा है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन है या वर्किंग फाइल्स है, वर्किंग होने के बाद में वो निकालो, उसका एक अलग से फाइल करो वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन और ये करके, और वो एक अलग तरीके से, क्योंकि उसका बहुत कम रेयर टू रेयर यूज होता है,
तो एक अलग सेक्शन में यूज करो। तो आपका मेन फाइल स्टोरेज जो है वहां पे ये डुप्लीकेट या वर्किंग फाइल्स एक बार काम खत्म हो गया तो वहां पे रख दो। जब कभी अगर अगर आपको लगता है कि वर्किंग फाइल्स बहुत बार जरूरी है तो आप उसके साथ में ही रखो, यानी 151 151A ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो दूसरी जगह पे रख देना। तीसरा है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि हर दिवाली, समझो दिवाली के वक्त अपना अक्टूबर टैक्स ऑडिट सीजन है, दिवाली होने के बाद में जब भी आपको टाइम मिले, 1 महीना 2 महीना जब भी आपको टाइम मिले, दिसंबर तक आपको 1 या 2 दिन देना है, सैटरडे संडे प्रेफरेबली, और आपको आपके ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड देखना है। और उसमें से कैसा है कि कौन सा रिकॉर्ड यूजेबल है, कौन सा रिटर्न करना है क्लाइंट्स को, कौन सा डिस्ट्रॉय करना है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है अपने पास में अभी भी 1995 1996 2000 ऐसे रिकॉर्ड, जैसे इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जितने दिन के लिए रखना है उतने दिन के लिए रिकॉर्ड रखना। नहीं तो परचेस बिल भी अपने पास में ही है, क्लाइंट के सेल बिल भी अपने ही पास में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो रिटर्न करने का है वो रिटर्न कर दो, जो आपके पास में यूजेबल हो सकता है फ्यूचर में उसको स्टोर करके रखो, और जो डिस्ट्रॉय करना है वो डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन ये आपको 2 दिन ये काम करना बहुत जरूरी है, हर दिवाली को साल में एक बार करना जरूरी है। और जैसे मैंने बोला कि हाई स्पीड स्कैनर करके आपका पूरा रिकॉर्ड आज तक की डेट का एक बार स्कैन करके रख दो, तो आपका ऑफलाइन फाइल्स अगर कुछ डैमेज भी हो गया तो आपके पास में एक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहेगा। तो ये कुछ फाइल मैनेजमेंट के टिप्स थे। अब एफसी का सी आ गया है, क्लाइंट मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है 100% क्लाइंट लिस्ट होना आपका जरूरी, आपके पास में जरूरी है। भले ही उसका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, लेकिन 100 यानी आपके पास में कोई क्लाइंट है कि जो नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए वाला है, तो उसका भी आपके पास में नाम, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो 100% क्लाइंट का लिस्ट होना जरूरी है। उसके आगे बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैं बता। दूसरा पॉइंट है एबीसी एनालिसिस करना। आपकी जो भी 100% क्लाइंट लिस्ट होगी उसमें आप एबीसी एनालिसिस करो कि जो ए ग्रेड के क्लाइंट्स की जो 10 से 15% रहते हैं जनरली, और वो अपने को 60 to 70% रेवेन्यू देते हैं अपने को, ए ग्रेड के क्लाइंट। बी ग्रेड के क्लाइंट्स 15 से 20% रहते हैं, वो रेवेन्यू अपने को 20 से 25% देते हैं जनरली। और सी ग्रेड के क्लाइंट जो है बच्चे वाले 60 to 70% जो भी है वो रहते हैं, और वो अपने को 10 से 15% ही रेवेन्यू देते हैं। तो अपने को ये एनालिसिस करके रखना जरूरी है, जिससे अपन ए ग्रेड के क्लाइंट्स को अच्छा सर्विस दे सके। तीसरा है न्यूअर टेक्नोलॉजी हैबिट टू क्लाइंट्स विच सेव टाइम एंड कॉस्ट। नए टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल है कि जो आपका एंगेजमेंट या कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ में टाइम सेव कर सकेगा या इजी कर सकेगा, ऐसे नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। आप पहले ट्राई करो, आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मेरे क्लाइंट को यूजफुल है, तो आप उसको एबीसी जो भी क्लाइंट्स को है उसको हैबिट बना दो। ये पता है कि 100% क्लाइंट के लिए ये होगा नहीं, लेकिन आप चालू करो, आपको 25-30% क्लाइंट के लिए भी अगर हो गया तो आपका बहुत सारा टाइम और कॉस्ट सेव होगा। और जैसे कि जीएसटी डेटा कलेक्शन है आज की डेट में, समझो अपन मेल पे लेते हैं, एक जगह स्टोर नहीं होता है। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल होगा मार्केट में कि जिससे जीएसटी डेटा उसने उधर से फीड कर दिया और इधर आपको दिख गया, या जैसे टैली क्लाउड है, टैली का उनका बैकअप जो है ऑटोमेटिकली आपको सिंकिंग होके मिल रहा है, तो ये ईमेल का झंझट मिट जाएगा। तो ऑटोमेटेड अपडेटेड टैली का बैकअप, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी अगर होगी अवेलेबल मार्केट में या आपके टैली प्रोवाइडर को पूछ के, तो वो एक हैबिट कर डालो, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। चौथा है वैल्यू एडेड सर्विसेज और टाइमली इन्फॉर्म। आप जो फिर आपको टाइम अगर मिल गया तो आप वैल्यू एडेड सर्विसेज चालू करो, जैसे स्कैनिंग का सर्विसेज है। लेकिन ये क्लाइंट को इन्फॉर्म भी करना उतना ही जरूरी है। आपका अगर 100% क्लाइंट का लिस्ट अगर है आपके पास में, तो आप उसको इजीली
इन्फॉर्म कर सकते हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, क्लाइंट ऑडिट के वक्त आता है, आपने बैंक लोन का सर्विस चालू किया, लोन सिंडिकेशन का, लेकिन क्लाइंट को बताया ही नहीं। एक 5-10 क्लाइंट जो है उतने ही लोगों को बताया, और कोई क्लाइंट आता है, सर मेरा 2 करोड़ का लोन हो गया। आप बोलते हो कि नहीं यार हम भी करते थे, तो सर मुझे पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास में 100% क्लाइंट का लिस्ट अगर है, तो आप उनको व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, कोई भी इसके जरिए उनको इन्फॉर्म करो इमीडिएटली कि वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू सर्विस फॉर अवर कस्टमर। ये आपका प्रॉम्प्टनेस भी दिखाता है, आपका ग्रोथ के लिए ये बेनिफिट भी करेगा। ईयरली मीट इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो आपके क्लाइंट का एक ईयरली मीट लो। आपके सिलेक्टिव क्लाइंट्स को आप ट्रेनिंग दो, जैसे ए ग्रेड क्लाइंट्स को आप ट्रेनिंग दो, इंडिविजुअली या ग्रुप में, जूम मीटिंग या किसी पे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो इससे ट्रेनिंग देने की वजह से जो आपका टाइम जो है आपके स्टाफ का वो भी कम हो जाएगा, कि जैसे कि जीएसटी का डेटा ये फॉर्मेट में या टैली से कैसे निकालना जीएसटी का डेटा, आपका 10 मिनट का टाइम जाएगा। लेकिन हर बार नहीं तो वो डेटा निकाल के देता है, आप बोलते हो कि ये नहीं, ये फॉर्मेट में चाहिए, उसको निकालते नहीं आता है, तो वो वही टाइम पास करते बैठेगा। अगर उसको ये, उसके क्लाइंट को या क्लाइंट के अकाउंटेंट को आप ट्रेनिंग दो, या मंथली एक मीटिंग रखते जाओ, नए नए फीचर्स टैली ने ये इम्प्लीमेंट किया, वो इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसे जो है वो ट्रेनिंग देते जाओ क्लाइंट्स को या उनके जो रिलेटेड पर्सन है उसको। तो इससे क्लाइंट को भी लगेगा कि आप भी अपडेटेड हो और मुझे कुछ तो वैल्यू एडेड इनपुट भी मिल रहा है इनकी तरफ से। डिस्कस ए ग्रेड क्लाइंट्स, देयर डिफिकल्टीज एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। क्या होता है कि ए ग्रेड क्लाइंट्स जो है, जो हायर अपने को फी पे कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज है उनको, वो आप उनके साथ में डिस्कस करो और उस पे सॉल्यूशन भी ढूंढो। बहुत बार क्या होता है कि ये ए ग्रेड के क्लाइंट्स फिर डिस्कस नहीं करते, आपके पास में अगर वैसी इको सिस्टम नहीं है तो डिस्कस नहीं करते हैं, और फिर थोड़े दिन के बाद में वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका आपके पास में सॉल्यूशन, और आपको उनके प्रॉब्लम्स पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो है एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से साल में 6 महीने में आप उनको फोन लगा के बोलो, सर कुछ डिफिकल्टी या कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए क्या हमारे इसमें, हमारी तरफ से कुछ ये हो रहा है, तो उनको सेटिस्फेक्शन अच्छे तरीके से मिलेगा। और वो कुछ प्रॉब्लम्स है उसका इजी सॉल्यूशन है तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये जो है, ये ऐसे क्लाइंट मैनेजमेंट जो है वो करने का है। बहुत सारे और भी अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स है। तो अभी जो है इसके रिलेटेड कोई सजेशन है? अभी अपन क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट टेक्निकल सेशन का जो है वो क्वेश्चन आंसर अपन ले लेंगे। Sir, do you want me to read the questions? क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज द राइट वे टू यूज ऑफिस सर्वर फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी नेटवर्क? आप जो है NAS यूज कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। हेलो, म्यूट करते हैं कोई? रेशमा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करना। स्क्रीन शेयरिंग तो रहने दो सर, मैं मिनिमाइज करके रख देता हूँ। तो व्हाट इज द राइट वे टू यूज ऑफिस सर्वर फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी नेटवर्क? एक तो NAS है, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज है, NAS है, या रिमोट डेस्कटॉप है, या गूगल का भी, क्रोम का भी डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप वर्जन है, तो उससे आप सर्वर एक्सेस कर सकते हो। और VPN भी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उससे भी हम ये कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपके ऑफिस का कितना स्ट्रेंथ है और ये है बजट है, उसके हिसाब से आप वो चॉइस कर सकते हो ये तीनों में से। NAS जो है थोड़ा सा ये है, अभी ऑफिस में मैंने जैसे OneDrive बोला है, वो भी स्टोरेज है, वो भी एक सिंपल ऑप्शन है, जिसमें 5000 रुपीज 1 यूजर का कॉस्ट होता है ईयरली, और आगे के यूजर्स को बहुत कम होता है।
इज इट ओके टू वर्क इन आरडीबी प्लेटफॉर्म? ये टेम्पररी थोड़ा सा ठीक है आरडीबी रिमोट डेस्कटॉप का, परमानेंट क्योंकि ऑफिस जब चालू हो जाएंगे, लेकिन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके पास में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आरडीबी प्लेटफॉर्म रेडी होना। अब कोविड की सिचुएशन जो है वो कितने दिन तक रहेगी अपने को भी पता नहीं है, तो ये आरडीबी प्लेटफॉर्म जो है आप ट्राई कर सकते हो, और आपको इफिशियंसी कैसे है उस हिसाब से देख के आप आगे का डिसीजन ले सकते हो। व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सर्वर थ्रू रिमोट? रिमोट डेस्कटॉप से एक है कि उसको कंटिन्यू सर्वर को लाइव रखना पड़ता है। आपके ऑफिस में अगर समझे इन्वर्टर बैकअप या कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया है, या रोज जाके रिसेट या ये करने का काम करना पड़ेगा। the right option for backup management, Dropbox, OneDrive, हार्ड डिस्क के सुपर, तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है। So please suggest some software to your financial passwords and financial documents like insurance documents. तो ये तो आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपीज करके आपके गूगल ड्राइव में भी रख सकते हो, वो फुल्ली सिक्योर्ड है। और पासवर्ड के लिए आपको 2-3 यानी मालूमात नहीं पड़ना चाहिए, तो एक्सेल का फाइल, लेकिन वो इतना फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है। आईफोन अगर है तो आईफोन का पासवर्ड सेक्शन है, वो तो आप यूज कर सकते हो आईफोन में। We use all-in-one printer. Now, because of excellent quality smartphones and apps, separate scanner is not required. We have separate smartphones for scanning. So that's not a question, sir. Okay. So can you please brief about कर्मसे application? तो ये एक रिमाइंडर सिस्टम है, उसका वेबसाइट है कर्मसे.com। वहाँ पे जाके आप रिमाइंडर सेट कर दिए तो वो डेट को आपको ईमेल पे, एसएमएस थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको रिमाइंड करेगा। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, अभी आ रही है? यस सर। तो कर्म से एक रिमाइंडर एप्लीकेशन है और ग्रुप मैनेजमेंट भी है, वो आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यानी अपने को हर चीज का और अपन सेव करके रख दिया तो वो रिमाइंडर देगा थ्रू एसएमएस, ईमेल और नोटिफिकेशन, और totally today's reminder on WhatsApp also on beta version. Should we save challan returns of clients which are available in their login like GST challan वगैरह? Yes, अपन ने सेव करके रखना जरूरी है। जैसे कि अपने को बहुत जरूरी आ गया है, जीएसटी साइट वर्किंग ही नहीं कर रही है, तब आप क्या करोगे? तो इसके लिए ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है, इनकम टैक्स में आपका असेसमेंट हो गया है तो वहाँ के जो भी नोटिस ये वो एक फोल्डर बना के सब डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके पीसी में सेव करके रखना जरूरी है। बार बार वो साइट ओपन करने का काम नहीं चाहिए, क्योंकि साइट को कभी भी प्रॉब्लम आता है तब आपका काम स्टक हो जाएगा। बेस्ट स्टैंड अलोन स्कैनर कैनन का है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। मॉडल नंबर अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसका फिजिक्सी एक कंपनी है, लेकिन कैनन का अच्छा है क्योंकि कैनन का फोटो के इसमें एक्सपर्टाइज है, तो कैनन का स्कैनर अच्छा है। बेस्ट क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन कर्म से है, मैं वो आपको उसके फीचर्स बताता हूँ आगे। Can we use VPN router to access server? Yes, you can use firewall. Without firewall अभी सिक्योरिटी के लिए आपको फायरवॉल लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका अगर VPN अगर हैक हो गया तो आपका डेटा पूरा ये हो जाएगा। इस क्लाउड कंप्यूटिंग सच एज EC2 एंड वर्कप्लेस प्रैक्टिस फॉर EC2 और ये अमेजोन के जो है वो थोड़े से कॉस्टली है, और अपना टेक्निकल टीम जो है उनको उतना नॉलेज नहीं रहेगा, तो आज की डेट में वो अपने को फिजिबल नहीं है EC2 और ये। एप्लीकेशन फॉर फाइल नेमिंग के लिए एप्लीकेशन कोई नहीं है, अपने को खुद को नेम डालना है वो। व्हाट इज CSR? CSR इज ऑफिस मैनेजमेंट टूल। सर प्लीज सजेस्ट एनी गुड ऐप टू सेंड बल्क SMS। वो CSR का भी एक फंक्शनैलिटी है, अपने को बल्क SMS किसमें भेजने के है वो। हाउ टू कीप कंट्रोल ओवर स्टॉक इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। अभी टैली का एक G7 बोल के एक वेबसाइट है, दिल्ली बेस्ड फर्म है, तो वर्चुअल वो टैली पे काम करते वक्त वो कितना घंटा काम किया है, क्या किया है, वैसा ये कर सकते हैं।
लेकिन कैसा है कि काम स्टाफ को अगर आप फ्रीडम एनवायरनमेंट कर सकते हो, उसका आउटपुट चेक करते जाओ, कंट्रोल करने के बजाय उसका अगर आउटपुट अच्छे तरीके से है तो उसको फ्रीडम दो, और आउटपुट नहीं है तो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है उसको पूछो और उसका सोल्यूशन निकालो, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। Right, sir. तो ये क्वेश्चंस थे। सर आई थिंक सीए सर्व और कम से के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, मैं नेक्स्ट ये जो है अपने एक 2-3 पॉइंट है, सेकंड टेक्निकल सेशन जो बोला था वो अपन चालू करते हैं। ये जैसे कि ये आपको स्क्रीन दिख आपकी रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। स्क्रीन दिख रहा है आपको, हाँ जी। स्क्रीन दिख रहा है ना? मतलब साइड में दिख रहा है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, इट इज वन ड्राइव, यस, वन ड्राइव फीचर दिख रहा है। तो ये वन ड्राइव के फीचर्स है, मैं एक 3-4 एप्लीकेशन के शॉर्ट फीचर्स बताता हूँ। वन ड्राइव जो है ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। मैं दूसरा, ऑटो सिंक फैसिलिटी रिमूव हेडेक ऑफ टेकिंग बैकअप, फ्रीक्वेंट बैकअप जो लेने का है अपने को डेली या ये, तो ऑटो सिंक होने की वजह से अपने को वो जरूरत नहीं है, जैसे ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव वगैरह में एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल ड्यू टू मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप भी है इसका, इसकी वजह से आप ऑफिस में नहीं है और किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल का जरूरत है तो आप मोबाइल से ही शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी अपने को टेक्निकल डिफिकल्टी आई थी और मैंने मोबाइल ऐप से आपको वो पीपीटी शेयर किया था। राइट सर। हाँ, तो ये यानी अपना काम स्टक नहीं हुआ उसकी वजह से। और ऑफिस में आप 6 से 8 घंटा 10 घंटा ही रहते हो, बाकी मोबाइल पे रहते हो, तो अपना काम एक एक काम छोटे छोटे काम हो जाते हैं। इसका बेसिक प्लान है 1 TB का स्टोरेज डेटा मिलता है 6 यूजर के साथ में, और 5,000 रुपये का इसका पर एनम का कॉस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 650 है पर मंथ। इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट का है तो सिक्योरिटी फुल्ली सिक्योर्ड है, और इसमें ऑप्शन है कि अपन किसी भी डेटा को सिलेक्टेड एम्प्लॉय को या क्लाइंट को या थर्ड पार्टी को अपन पर्टिकुलर डेटा का एक्सेस दे सकते हैं विथ एक्सपायरेशन, ये वो बहुत सारे फीचर्स है उसमें कि 2 दिन के लिए एक्सेस देना, 1 हफ्ते के लिए, परमानेंटली, कैन एडिट, कैन व्यू ओनली, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसका डेस्कटॉप वर्जन है, तो आपको ऑनलाइन हर चीज करने का जरूरत नहीं, डेस्कटॉप वर्जन है तो आपके सर्वर पे आपने फाइल एडिट कर दिया या डिलीट कर दिया, ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूस, आपका नेट कनेक्टेड है सर्वर को तो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, तो क्लाउड से भी डिलीट हो जाता है फाइल। कोई नया फाइल अगर मोबाइल में आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन आ गया है, मोबाइल में ही आप जो है पर्टिकुलर क्लाइंट के फोल्डर में सेव करके रख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड को सिंक होके आपके ऑफलाइन जो है सर्वर, वहां पे भी वो सिंक हो जाता है। जैसे कि जीएसटी चलन भेजा उसने व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप से वन ड्राइव के मोबाइल में जाके पर्टिकुलर फोल्डर पे स्टोर करके रख दो, वो आपके सर्वर पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, उसका फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसमें नए नए बहुत सारा एमएस एक्सेल और वर्ड, नए नए बहुत सारे टूल्स लेके आ रहा है। उसका वेबसाइट है onedrive.live.com। दूसरा है CSR, इसका वेबसाइट है www.csr.in। पहला फीचर है कि टास्क और एम्प्लॉय मैनेजमेंट इजी हो जाता है इसका, क्योंकि कौन क्या काम कर रहा है अपने को पता चलता है। रोल बेस्ड एक्सेस कीप्स ऑफिस कंट्रोल एट अ क्लिक। तीसरा है ऑटोमेटेड टास्क, जो है जो रिपीटेटिव टास्क है जैसे GST 3B, इनकम टैक्स रिटर्न, TDS रिटर्न, ये ऑटोमेटेड क्रिएट हो जाते हैं, तो ये आपका टाइम से होता है। टास्क रिमाइंडर कीप्स थिंग्स अपडेटेड, आपने अगर किसी काम के लिए रिमाइंडर लगाया है तो ये टाइमली रिमाइंड करता है, तो आपको हर चीज के लिए अपडेट करता है। इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर टीम, आपके टीम का ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्योंकि आपके स्टाफ को लिस्ट मिलती है ऑटोमेटेड, मुझे ये काम करना है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस इतने काम के लिए। नहीं तो वो एक जवाब दे देता है, सर मैं भूल गया, तो वो भूलने की जो आदत है वो यहाँ पे नहीं होगा, तेरे लिस्ट में है तो तेरा अपडेट करते जा। हाई स्पीड लाइट वेट यूजर फ्रेंडली UI है। उसके बाद में फुल्ली सिक्योर्ड है, क्योंकि अगेन AWS अमेजॉन वेब सर्वर पे अपना
256 बिट का एन्क्रिप्शन है। तो जो AWS जो है बैंकिंग सिस्टम्स भी AWS है, मैक्सिमम स्टोरेज जो है वो AWS पे है। अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, वेब, एंड्रॉयड और iOS। यानी वेब पे भी काम कर सकते हैं और मोबाइल ऐप भी है एंड्रॉयड और iOS। यूडिन DSC मैनेजमेंट जो है उसमें इजी हो जाता है। स्मार्ट और इंस्टेंट इनवॉइस का फैसिलिटी है, उसकी वजह से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। नहीं तो काम हो जाता है, अपन कभी कभी बिल बनाना भूल जाते हैं, नहीं तो काम किया सितंबर में, बिल बनाया जनवरी में, ऐसा नहीं होता है। काम हो गया है, इमीडिएटली इनवॉइस जनरेट करो। आपको 30-40% लोग भी अगर इमीडिएट पैसा देना चालू कर दिए तो भी बहुत हो गया। क्लाइंट लॉगिन है इसको, और डॉक्यूमेंट अपलोड का भी फैसिलिटी है उसमें, क्लाइंट को अपलोड करने का, जैसे चालान ये वो जो भी है। डेली व्हाट्सएप अपडेट्स आते हैं आपको, टुडेज रिमाइंडर्स के, ये बीटा वर्जन में है। और इसमें 30 डेज का फ्री ट्रायल भी है, और बाकी के बहुत ऑटोमेटेड SMS भी है क्लाइंट को। जैसे आपका GST शेड्यूल्ड SMS कर सकते हो, या सिंगल क्लिक पे आप 100 क्लाइंट्स को SMS भेज सकते हो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। PDF कॉम्प्रेसर जैसे एक है, स्मॉल PDF, इसका ऑनलाइन और डेस्कटॉप वर्जन है। उसके बाद में एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम मोबाइल ऐप है, उसकी वजह से क्वालिटी और कंप्रेशन रेशियो बहुत अच्छा है। एक लॉगिन आप मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकते हो। इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, $108 पर एनम है एक यूज़र के लिए अप्रोक्सीमेटली। और बहुत सारे PDF टूल्स अवेलेबल हैं इसके साथ में। क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है अपने को, वही PDF 24 है। ऑनलाइन और डेस्कटॉप वर्जन इसका भी अवेलेबल है, फ्री और पेड वर्जन्स भी है, और वेरियस PDF टूल्स भी अवेलेबल है इसके। जैसे 1-2-3 इसका अभी आपको कुछ CS और सर स्पेसिफिक। हाँ, सर किसी ने तो प्राइस पूछा है फॉर CS प्लान, बेसिक प्लान। बेसिक प्लान जो है उसका 4000 पर ईयर है उसका, और उसमें आपको जो है अप टू 25 एम्प्लॉइज आप क्रिएट कर सकते हो, 1000 क्लाइंट्स। ओके सर। वो हाँ, विथ मोबाइल ऐप वगैरह सब फंक्शनैलिटी। Radhesham, हाँ I request you and also participants about cost and what you contact one-to-one, यस ओके। not in the seminar, please. आप क्या करो, वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर लो उसका, वेबसाइट पे है डिटेल। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट? Sir, I think all our questions are done. PPT जो है वो मैंने मैडम को शेयर किया है, वो आपके मेल आईडी पे भेज देंगे। Okay, sir. रेशमा, हो सर। PPT रजिस्टर में रजिस्टर यूजर आईडी ना रजिस्टर हाँ, पार्टिसिपेंट PDF फाइल मैं भेज देता हूँ, वो PDF फाइल आप शेयर कर दो। हाँ चलेगा। Yes, sir. So, I may like to express our sincere thanks to Mr. Biyani for giving an excellent coverage on the topic today. Thanks a lot for such a wonderful session, sir. And I would like if Samir Ladha sir can propose a formal vote of thanks to him. Well, thank you, Snehal. Say Radhesham Biyani, thank you for wonderful insights given about the office management. I'm very much sure that your presentation, your today's talk will definitely help to all the members for the office management. As you already decided, we will share your presentation to all the registered members, and if required, they can contact you one-to-one for their further queries. Thanks a lot. All the participants, thank you for your attending today's evening program and actively participate. Lot of question answers happen. Thank you very much. Again, all the best. Good night. Thank you, Samir sir. On behalf of Pune branch of ICAI, I thank you all for joining us once again.
for the VCM on today's topic. See you soon. Take care. Goodbye. Thank you all for giving Thank me you, sir.